Hello friends, today I am going to start with the new chapter. The name of the chapter is oscillation. So weightage of this chapter is 5 to 7 marks in your board examination. In this chapter we are going to study about the linear simple harmonic motion, velocity, displacement, acceleration value in simple harmonic motion and graphical representation of the simple harmonic motion, etc. So starting with the first topic, that is linear simple harmonic motion. Linear SHM, simple harmonic motion. We'll write here simple harmonic motion. It is very interesting topic, friends. Linear simple harmonic motion. So friend, this linear simple harmonic motion is defined as the linear motion of a body in which restoring force is always directed toward the mean position and its magnitude is directly proportional to displacement from the mean position. So first I am going to write the definition of this linear simple harmonic motion, then I will explain you. It is defined as linear periodic motion of a body, linear periodic motion of a body in which restoring force is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position. So friends, linear simple harmonic motion is defined as linear periodic motion of a body in which restoring force is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to displacement from the mean position. Now friends, what is restoring force? This restoring force I will explain you. It is a opposite force. Opposite force. Let us consider, this is explanation friends. Now here spring is attached with some mass M. Okay. Now I will apply some force to this mass M in left direction. In this direction I will apply some force. What will happen? Now this mass is at a distance of x friends. This mass is at a distance of, let us consider it has a distance of x distance. Now when I will apply the force to the left direction, what will happen friend? This is a spring. It will compress. So now this mass will reach here. Okay. Okay. Now this distance, let us consider x direction, x dash direction, new direction. So you have applied force. You are applying force. Now your force has applied. Force has applied. When you will apply force, this mass will reach to this distance, that is x dash distance, means this spring will compress. Okay. Now when you will remove this force, so what will happen? This mass will again go to the initial direction. It will reach to the initial position. Okay. So now this distance is x distance again. Okay. So what happens?
here basically when you have applied the force it has been compressed. स्प्रिंग क्या हो गया दोस्तों, कंप्रेस हो गया. कंप्रेस होने के बाद जो उसका नया डिस्टेंस बना वो क्या हो गया फ्रेंड्स, एक्स डैश डिस्टेंस. अब आपने क्या किया फ्रेंड्स, फोर्स को फिर से हटा दिया तो उसमें क्या हो गया फ्रेंड, स्प्रिंग अपने इनिशियल पोजीशन पे चला गया, मतलब वो वापस एक्स डिस्टेंस में चला गया, मतलब उसमें कुछ एक ऑपोजिट फोर्स लगा. जब ये फोर्स आपने अप्लाई किया था स्प्रिंग इस पोजीशन में, मास स्प्रिंग कंप्रेस होकर इस पोजीशन पे आ गया. जब आप फोर्स हटा दे रहे हो तो वो वापस इस पोजीशन पे जा रहा है, मतलब क्या आप कोई एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट करा रहे हो. उसी ऑपोजिट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स. सो लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी in which restoring force is always directed toward the mean position and its magnitude is directly proportional to displacement from the mean position. This is your initial body. You have applied force. The spring has compressed and reached to this distance. Now when you will remove the force again, the spring will move to the initial position. It means what? After removing the force, there some opposite force acts on these masses so that this mass will move to the initial position. That opposite force is friend restoring force. Okay, so now from this above statement, this is an explanation friend for understanding. Don't write in the exam, but this definition you can write. So this is our explanation. When you applied force, what happens. So by this statement we are calculating now acceleration in this simple harmonic motion. By the above statement, we can write as, so what happens friends, you have applied force means what, that force will be how much in this linear simple harmonic motion, it will be, since F is equal to is directly proportional to x. Yes or no? So what is the statement? Basically linear periodic motion of a body in which restoring force is always directed toward the mean position. Restoring force is always directed toward the mean position and it is directly proportional to displacement from this mean position. It means what? The restoring force which is acting, it is directly proportional to the displacement from the mean position. So F is equal directly proportional to k into x. To remove this proportionality sign friends, what will happen? Therefore F is equal to minus k into x. Why negative sign comes, I will explain you again. This is nothing but the force of linear simple harmonic motion, where this negative sign, pay attention friends, negative sign indicates force and displacement are in opposite direction. Friend, this force and displacement are in opposite direction. Yes, of course. Now see here, you have applied force, आपने फोर्स को अप्लाई किया, फिर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, इस पोजीशन पे गया एक्स डैश पोजीशन पे. अब यहाँ पे फोर्स रिमूव करे और रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसमें, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो व्हाई द नेगेटिव साइन केम, बिकॉज ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स, ऑपोजिट फोर्स. व्हाई दिस mass is again going to its initial position, that is mean position, that is initial position which was this. Okay, so now this restoring force will be negative force, this restoring force will be negative of this displacement. ये पीछे जा रहा है फोर्स, अंदर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव फोर्स, और ये पीछे जा रहा है तो नेगेटिव. F is minus k into x. Now by Newton's second law, by Newton सेकेंड लॉ, फोर्स क्या होता है दोस्तों, मास इंटू एक्सीलरेशन. सो देयरफॉर ए विल बी व्हाट, एफ अपॉन एम. यस और नो? दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूटिंग 1 in 2. So friend, what will happen when I will substitute 1 in 2? So therefore acceleration will be minus kx into अपॉन एम, सॉरी, ए विल बी माइनस, एफ की जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, माइनस के इंटू एक्स. सो ए विल बी माइनस के एक्स अपॉन एम. दिस इज माई एक्सेलरेशन वैल्यू. ओके, नाउ फ्रेंड्स, बट दिस
k upon m is nothing but omega square. This k upon m is what, friends? Omega square. So when you will substitute here, you will get acceleration is equal to minus omega square into x. This is my acceleration in the linear simple harmonic motion. Okay, you have to remember this formula. Omega is equal to root of k upon m. You have to remember this formula. Therefore omega square will be what? Omega square will be k upon m. Okay, so this was my linear simple harmonic motion. What it explained? It is defined as linear periodic motion of a body in which restoring force is always directed toward the mean position and its magnitude is directly proportional to displacement from the mean position. You have applied force. What happens? You understood. Now by the above statement, F is directly proportional to x. You got F is equal to minus k into x. Why negative sign k? That also I have explained. So now Newton's second law you have applied, then you got a acceleration is equal to minus kx upon m, where omega square is what? K upon m. How it came? The formula of omega is equal to root of k upon m. So you got a acceleration value as a minus omega square into x. So this was my acceleration value. Now, so for this NEET, JEE and MST CET, some note point is there. All simple, pay attention friend, all simple harmonic motion are periodic, but all periodic motion are not harmonic. Okay, you have to remember for this exam point of view, entrance point of view, all simple harmonic motion are periodic motion, but all periodic motions are not harmonic. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू में होता है फ्रेंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड यही लाइन होता है, आपको याद रखना है. ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट harmonic. Okay, so moving on to the next topic. It's very interesting topic. The topic is derive the differential equation for linear harmonic motion. Derivation for differential equation of linear harmonic motion. So I'll write the heading, which is 3-star question from exam point of view. Derivation on the differential equation of linear SHM. Friend, it is very interesting. So we have calculated what is restoring forces, that is F is equal to minus k into x, what is linear simple harmonic motion, and what is acceleration value in the linear simple harmonic motion. Now what is differential equation in linear simple harmonic motion? So we will derive this. First we will take with the Newton's law only. By Newton's second law, F is what friends, थोड़ी देर पहले बताया, mass into acceleration. Okay, mass into acceleration. Since the restoring force is what friends, that is minus k into x. Since restoring force is F is equal to minus k into x. Okay, this is equation number 2. Okay, now when you will substitute this 2 in 1, what you will get? As acceleration equation only you will get, no? So therefore substituting equation 2 in 1, so what will happen when you will equate? Okay, substitute or equate F is equal to minus kx, substitute here, or you can equate also. So what will happen? M into a is equal to minus k into x. So what will be your acceleration value? You know that, minus kx upon m. Okay, that we have calculated. Okay, a is equal to minus kx upon
m, which is minus omega square into x acceleration value. Okay, now so now what we have to calculate, friends? We have to calculate the differential equation. Okay, so by differentiation of acceleration, what is differentiation of acceleration? फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी निकालते हैं, dx by dt इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, dv by dt. सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट, a इज इक्वल टू dv by dt. बराबर. सो दिस a इज इक्वल टू dv by dt, let us consider as the equation number 4. Now what is differentiation of velocity? Differentiation of velocity, friends. What is differentiation of velocity? V is equal to dx by dt. This is equation number. Let us consider this equation as a fifth equation. It is very interesting, friend. Now what you will do, you will take this phi equation and you will put in the equation number 4. So what will happen? A is equal to d upon dt. And what is v, friend? dx by dt. That is dx by dt. दोस्तों समझ में आ गया आपको? देखो किस तरह किया मैंने. हमने एक्सेलरेशन निकाला, दैट इज माइनस के एक्स अपॉन एम. हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू dv बाई dt. अभी हमें वो भी पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, फ्रेंड्स, क्या होता है, dx बाई dt. अब ये v इज इक्वल टू dx बाई dt हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है इस v में. समझ में आ रहा है? सो a is equal to d by dt into dx by dt. So what you will get a? So a you will get as a d square, d into d square into x upon dt का square. So let us consider this equation as a sixth equation. Okay, it is very interesting, friend. Now you got equation number 6 as a is equal to dx by dt, d square x upon dt square, sorry, d square x upon dt square. Now what you will do, this equation 6 you will put in the equation number 3. So, or you will equate in the equation number 3. So what you will get, friends? So substituting or put equation number 6 in 3. So what is your equation number 6, friends? A is equal to d square x upon dt square. And what is your equation number 3? A is equal to minus kx upon m. So when you will put this equation number 6 in equation number 3, you will get, therefore, d square x upon dt square is equal to minus kx upon m. Understood? अब ये माइनस को हम LHS में लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, d square x upon dt square is plus kx upon m is equal to 0. Friend, this is nothing but differential equation of the linear simple harmonic motion. But friend, I have told you that this omega square is, friend, what? Kx upon m. Kx upon m is what? Omega square, and omega is what? Root of k upon m. You have to remember this formula when you are in oscillation chapter. So when you will substitute this k upon m as a omega square, so what will be your differential equation, friend? D square x upon dt square plus omega square into x is equal to 0. So friend, this is nothing but differential equation in linear SHM. Friend, it is very interesting. Again I will explain you. By Newton's second law, force is equal to mass into acceleration, and here we have calculated restoring force, F is equal to minus kx. So from that I got a value A is equal to minus kx upon m. Now differentiation of acceleration is what? dv by dt, and differentiation of velocity is what? dx by dt. Substitute this v dx by dt in equation number 4. So what you will get? D upon dt into dx by dt, that is d square x upon dt square. Now what you will do, this equation number 6 you will put in the equation number 3. So what you will get, friends, that is d square x upon dt square is equal to minus kx upon m. So when you will take this minus kx upon m into LHS side, you will get the equation as a d square x upon dt square plus kx upon m is equal to 0. And you all know that omega square is k upon m. You have to remember, friends, omega is equal to root of k upon m. So when you will substitute, you will get differential equation of the linear SHM. Now friends, our next topic is to calculate the displacement, velocity and acceleration in simple harmonic motion.
So expression for friends, expression for acceleration, velocity and displacement. Friend, it is very important and they may ask for 3 marks. Displacement of SHM. Also find the maximum, this is very important friend, maximum and minimum values of displacement, velocity and acceleration. Okay, so this is a 2 questions I have combined in one, and it is a 2 topic I have combined in one. This is a very interesting topic, and here we have to calculate what is acceleration, velocity and displacement of SHM, and also we have to calculate the maximum and minimum value of displacement, velocity and acceleration. Either they may ask expression for acceleration, velocity or displacement, or they may ask what is maximum and minimum value for displacement, velocity and acceleration. So step 1, we are moving on to the step 1, expression for acceleration. Expression for acceleration. Okay, now we have to take the differential equation with us. So what is our differential equation? D square x upon dt square plus omega square x is equal to 0. With the help of this we will calculate all the value. So by differential equation, we can write d square x upon dt square plus omega square into x is equal to 0. Now you do one thing, you take this as to the RHS. So it will be d square x upon dt square is equal to minus omega square into x. So what will happen? We know that velocity, यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वहाँ पे एग्जाम में नहीं लिखना, ये एक्सप्लेनेशन के लिए. v is equal to dx by dt. We all know that v is equal to dx by dt and a is equal to dv by dt. Substitute dx by dt in dv by dt, you will get d square x upon dt square. Now we know that a is equal to d square x upon dt square. Okay friends, so what will happen? This d square x upon dt square is what? A, no? So a is equal to minus omega square into x. ये हमने प्रूफ कर दिया था पहले, फिर से यहाँ इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, इस एक्सप्रेशन में हमें प्रूफ करना है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सेलरेशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम? इस तरह. डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. सो हमने उसको RHS में ले लिया, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. अब माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स क्या है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. तो ए क्या है हमारा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट कर दिया. ए कैसे है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इस तरह फ्रेंड्स. ओके, सो ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. नाउ स्टेप 2, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी. दोस्तों जिस तरह मैं आपको नोट्स दे रहा हूं उसी तरह आप लिखिए, बहुत फायदेमंद होगा आपका. एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी. अब वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम अभी एक्सेलरेशन को साथ में लेंगे. एक्सेलरेशन दोस्तों क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ओके, बट नॉर्मल वे में एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt. डिफरेंशियल वे में विच इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt. इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं फ्रेंड्स? a इज इक्वल टू dv बाई dt है ना, तो dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, मतलब ये dx कट करो तो यही बचेगा. मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया क्योंकि मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी. आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट? वेलोसिटी. सो नाउ दिस इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स? This dx upon dt is what? Friend, velocity. So your acceleration will be dv upon dx into v. dv upon dx into v.
let us consider this equation as a 1 and this equation as a 2 friends. Now put 2 in 1. What will happen friend? dv upon dx into v is equal to minus omega square into x. Okay, now take dx into RHS. So what will remain? v dv is equal to minus omega square into x into dx. अब दोस्तों हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन बोथ दी साइड करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड. तो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेट जब करूंगा? v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू. तो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी क्या होगा? v स्क्वायर बाई टू. मैं भी लिखता हूँ x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाई टू. तो ये क्या हो जाएगा मेरा? v स्क्वायर बाई टू. ओके, नाउ दिस माइनस ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन, बाहर आ जाएगा. और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू. सो ये भी हो जाएगा क्या दोस्तों? एक्स स्क्वायर बाई टू. और जब भी हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट देते हैं प्लस सी. दिस एज ए इक्वेशन नंबर 3. नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है फ्रेंड? हमें c कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है हमें? c. और वो हम c किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट को वैल्यू लेंगे प्लस और माइनस ए, वेलोसिटी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस तरह हमें c का वैल्यू मिल सकता है. अभी हम कैलकुलेट करेंगे c का वैल्यू. मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, आपको इजी समझ में आ जाएगा. जब हम c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हमें x का भी वैल्यू कुछ चाहिए. ओके, और v का वैल्यू भी हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है. जब हम v का वैल्यू वेलोसिटी को 0 रखते हैं तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाता है? प्लस और माइनस ए. सो और व्हेन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, कुछ डिस्टेंस प्लस और माइनस ए, वहां पे वेलोसिटी मेरा क्या है दोस्तों? 0. जब हम दोनों इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड? v का वैल्यू जब मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों? प्लस और माइनस है तो ए स्क्वायर बाई टू प्लस सी. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है फ्रेंड? सी का वैल्यू. तो इसको हम क्या करेंगे? LHS में लेकर चले जाएंगे. तो सी विल बी व्हाट फ्रेंड्स? प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय टू. ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. नाउ डू वन थिंग, पुट 4 in 3, you will get the velocity value. Put 4 in 3. हम नेक्स्ट पेज में करते हैं. जब हम 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? Therefore v square by 2 is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी था ना. अब सी की जगह पे हम दोस्तों क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू. देखो हमारा इक्वेशन फ्रेंड क्या था? यही था, दैट इज v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी. अब हमने c का वैल्यू कैलकुलेट किया, वो हमें कितना मिला? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू. उसी को हमने यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू. अब ये 2 क्या हो गए फ्रेंड? कट हो गए. अभी आपको क्वेश्चन आएगा ये 2 कैसे कट हो गए? प्लस है यहाँ पे, तो हमने हाफ को कॉमन लिया बाहर तो कट हो गए फ्रेंड्स. अब देयरफॉर हमें क्या बचा? v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओके, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ओके, अब हम इस तरह लिखते हैं इसको, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे फ्रेंड? ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. ओमेगा स्क्वायर जब कॉमन ले लूंगा बचेगा क्या ब्रैकेट में? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो v क्या होगा? टेकिंग स्क्वायर रूट. हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट. ठीक है, अब v क्या हो जाएगा फ्रेंड? प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यही हमारा वेलोसिटी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में. सो v विल बी फ्रेंड, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज आवर वेलोसिटी फॉर्मूला इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया हमने, वेलोसिटी कैलकुलेट किया. अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी इन लीनियर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम SHM ही बोलते हैं. ठीक है, अब ये v मिल गया प्लस और माइनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेप 3, दैट इज टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट.
बहुत इजी है फ्रेंड्स। डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करेंगे, सिंस अब देखो, जब हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया था हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिए थे, जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट किए हम एक्सीलरेशन को साथ में लिए थे। अब हम जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम वेलोसिटी को लेंगे। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को लेते हैं। अब एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना था तो हमने किसको लिया था, डिफरेंशियल को लिया था, ठीक है। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करना था तो हम किसको लिए थे, एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो अब हम किसको लेंगे, वेलोसिटी को। तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज गिवन एज, क्या मिला है हमें, प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो वी क्या मिलेगा, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ पॉजिटिव रहेगा, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको मालूम है बचपन से v क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, dx बाय dt। अब dx बाय dt है तो हम क्या करेंगे, लेट अस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1, पुट 2 in 1. So what you will get friends, dx by dt is equal to omega root of a square minus x square। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या मिला है, dx by dt is equal to ओमेगा रूट ऑफ a square माइनस x square। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे जो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है मैं इसको LHS फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, तो वो डिवीजन फॉर्म में आएगा क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अब वो जब LHS में आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, डिवीजन फॉर्म में आएगा। सो इट विल बी देयरफॉर 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस dt को वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी। इक्वेशन क्या था, मैं वहाँ पे यहाँ पे आपको याद दिलाता हूँ, dx बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे लेके गया, इसको यहाँ पे लेके चला गया, तो मुझे क्या मिल गया इक्वेशन, ए 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो हम डी एक्स ले कैलकुलेट करना है क्या, नहीं एक्स कैलकुलेट करना है। जब डिफरेंशियल को हमें कैलकुलेट करना तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी। अब फ्रेंड ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और आपको मालूम है इंटीग्रेशन के 22 फॉर्मूलेज में से आई थिंक सब 18 फॉर्मूला के 19 फॉर्मूले में ये फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप करोगे मैथमेटिक्स में जब इंटीग्रेशन करोगे, आप फॉर्मूलेज याद करोगे तो उसमें डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root of a square minus x square is nothing but sin inverse of x by a। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है दोस्तों। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। और आपको तो मालूम है ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और प्लस अल्फा फॉर्म में चले जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन दोस्तों, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट बाहर चला गया, dt का t हो गया दोस्तों, और इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गया तो कांस्टेंट लेंगे प्लस c, पर यहाँ पे हम लेंगे दूसरा अल्फा से डिनोट करेंगे। तो इस कंडीशन में x अपॉन ए साइन इनवर्स में है, साइन को वहाँ पे लेके चले जाएंगे तो x अपॉन ए दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अभी कैलकुलेट क्या करना था, डिस्प्लेसमेंट। सो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। दोस्तों ये क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर SHM। दोस्तों समझ में आया किस तरह कैलकुलेट किया। सो फ्रेंड जो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला है वो क्या मिला है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या मिला दोस्तों, x इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है। जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो एट मीन पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा जो हम कैलकुलेट करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो एट मीन पोजीशन में क्या होगा दोस्तों, एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 होगा दोस्तों। x क्या होगा मेरा, x इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, और टाइम भी कितना होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस अल्फा, क्योंकि t का वैल्यू 0 तो ओमेगा टी विल भी 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, देयरफॉर हमें पता है साइन अल्फा क्या होता है दोस्तों, 0। तो इस कंडीशन में साइन इनवर्स ऑफ 0 इज ऑल्सो 0, दैट इज अल्फा इज 0। ओके ओके, therefore at mean position x will be a sin omega t। याद रखना है at mean position में डिस्प्लेसमेंट कितना था दोस्तों, a sin omega t, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट किया साइन अल्फा 0, तो साइन अल्फा विल बी ऑल्सो 0। तो उस कंडीशन में अगर अल्फा मेरा 0 हो गया तो उस कंडीशन में क्या बचेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, x इज इक्वल टू a sin omega t। अब दोस्तों एट एक्सट्रीम पोजिशन में क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्सट्रीम पोजीशन में देखो, जब मीन पोजीशन में था x क्या था, 0 था। एक्सट्रीम पोजीशन में x इक्वल टू प्लस और माइनस ए होगा, और टाइम तो 0 होगा दोस्तों, टाइम 0 ही रहेगा। अब इस कंडीशन में x के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे प्लस और माइनस ए, प्लस और माइनस ए इज इक्वल टू a साइन t, तो 0 है ना, तो ओमेगा टी 0 हो गया दोस्तों, 0 प्लस अल्फा। इस कंडीशन में अब ये a और ये कट हो गया, तो प्लस और माइनस 1 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस अल्फा इज साइन अल्फा। नाउ अब यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करना है दोस्तों, अल्फा विल बी व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस 1। अब साइन का वैल्यू +1 कब आता है और -1 कब आता है, ये कैलकुलेट करना है ना। देखो ये प्लस और माइनस 1 क्या मिला, साइन अल्फा, तो अल्फा विल बी साइन इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस 1। अब ये 0 साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1। तो उस कंडीशन में π/2 में और 3π/2 में साइन का वैल्यू क्या आता है, +1 और -1। तो अल्फा क्या हो जाएगा, π/2 एंड 3π/2। समझ में आया, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। तो a का वैल्यू प्लस और -1 रखा है, तो a कट हो गया है, तो इस कंडीशन में प्लस और -1 इज इक्वल टू साइन अल्फा मिला है। तो अल्फा क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ प्लस और -1। और साइन का वैल्यू +1 कब होता है और -1 कब होता है, साइन का वैल्यू +1 होता है 90 में, तो π/2 में, और -1 होता है 3π/2 में, तो 3π/2। तो उस कंडीशन में दोस्तों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या मिलेगा एक्सट्रीम पोजिशन में, दैट इज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा। देखो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है, साइन 90 प्लस थीटा। अब मैं आपको बताता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा मतलब 0, 90 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा यहाँ पे होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा मैंने बताया था कि जब और 90 होता है तो साइन का कॉस होता है, 180 होता है तो साइन का साइन ही रहता है। तो साइन 90 प्लस थीटा मीन्स व्हाट, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, क्योंकि 90 प्लस थीटा है ना, तो कॉस थीटा जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे, ये साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। एट एक्सट्रीम पोजिशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। देखो किस तरह आया, देखो यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, tan और cot, यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, टी कप्स, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में साइन 90 प्लस थीटा है मतलब प्लस कॉस थीटा, किस तरह है आपके माइंड में क्वेश्चन आया रहेगा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, तो इस कंडीशन में 90 प्लस थीटा तो बाहर जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो हम किसका वैल्यू दिख रहे हैं, साइन का वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा किस फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट 90 प्लस थीटा है तो क्या जाएगा, कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा होगा तो साइन थीटा ही होता। तो 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो प्लस कॉस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे, ओमेगा इंटू टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टू, सर्कुलर मोशन से हम पढ़ते आ रहे, और उस कंडीशन में ओमेगा टी ये
सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजिशन। ओके, नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हाफ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैक्सिमम और मिनिमम की ओर बढ़ना है। टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं पहले, तो फिर हम बाद में वेलोसिटी, बाद में एक्सेलरेशन, खत्म हो जाएगा फटाफट। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। तो इस कंडीशन में फॉर मिनिमम वैल्यू, मैं पहले ले रहा हूँ फॉर मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम करना है ना, मैं पहले मिनिमम वैल्यू के लिए कैलकुलेट करता हूँ। मिनिमम के लिए मेरा दोस्तों अल्फा क्या रहेगा 0 और t क्या रहेगा दोस्तों 0। तो उस कंडीशन में मिनिमम में मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एट मीन पोजिशन मिनिमम। सो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम दोस्तों क्या आएगा 0। फॉर मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों अल्फा, देखो ये टोटली क्वाड्रेंट में डिपेंड होता है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए साइन वैल्यू 0, अल्फा 0 रहेगा। मैक्सिमम का हो सकता है साइन का वैल्यू π/2 में और 3π/2 में, नहीं सिर्फ π/2 में। तो π/2 एंड 3π/2, 3π/2 में भी मैक्सिमम होगा। यहाँ और यहाँ 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में सो मैक्सिमम वैल्यू में अल्फा क्या होगा π/2 और 3π/2। तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू a साइन t तो 0 है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या t 0 है, यहाँ पे t 0 है दोस्तों। तो t 0 है मतलब ये 0 प्लस अल्फा क्या होगा π/2, 0 प्लस π/2। सो x विल बी a साइन 0 प्लस π/2 मतलब π/2 साइन 90 दोस्तों क्या होता है 1। तो इस कंडीशन में x इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो ये कहाँ पे है मिनिमम में और ये कहाँ पे है मैक्सिमम में, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिया x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, मिनिमम वैल्यू में अल्फा 0 होगा, टाइम भी 0 होगा, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट भी 0 आएगा मिनिमम में। अब जब मैक्सिमम हो रहा है एंगल बढ़ेगा मीन्स व्हाट, साइन मैक्सिमम कहाँ पे होगा 90 पे होगा। वो कितना होता है 1 इज अ मैक्सिमम वैल्यू, और -1 कहाँ पे होता है 3π/2 में, तो वो भी एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो π/2 एंड 3π/2 तो मैक्सिमम है, और लिख लो, एंड कन्फ्यूजन है और लिख लो, और 3π/2। तो हमने π/2 सब्स्टिट्यूट किया, t तो यहाँ पे 0 होगा, तो 0 प्लस π/2 साइन π/2 इज व्हाट 1, π/2 इज व्हाट 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू a एट मैक्सिमम। अभी हम मैक्सिमम π/2 के लिए कैलकुलेट किया, अब 3π/2 के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरह। x इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस 3π/2 दोस्तों क्या आ जाएगा देखो, x इज इक्वल टू a साइन 3π/2, 3π/2 मीन्स दोस्तों कितना साइन 3π/2 देखो मतलब 270, साइन 270 मीन्स व्हाट -1, यस और नो। सो साइन 3π/2 कितना होता है दोस्तों -1, सो x इज इक्वल टू -a। तो ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू है, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू है, बस ये π/2 में है और ये 3π/2 में है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर वेलोसिटी। To find maximum and minimum value of velocity, बहुत ही ईजी दोस्तों। जब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी का वैल्यू हम पता है, सिंस v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया था ना दोस्तों। यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू देखो, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वही उसी से हम वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। अब वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन दोस्तों, एक्सट्रीम पोजीशन में x का वैल्यू कितना होता है प्लस और माइनस a दोस्तों, ठीक है मालूम है ना। मीन पोजीशन में 0, एक्सट्रीम पोजीशन में प्लस और माइनस a, तो उस कंडीशन में v क्या हो जाएगा प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x का वैल्यू पे a सब्स्टिट्यूट किया है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी व्हाट 0, रूट 0 विल बी 0 इंटू ओमेगा विल बी 0। सो वेलोसिटी एट मिनिमम विल बी 0। पहले हमने मीन पोजीशन में
कैलकुलेट कर दिया, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी मिनिमम, मीन पोजीशन नहीं बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन में हमें वेलोसिटी कितना मिलता है 0, जो कि मिनिमम वेलोसिटी होता है, इट इज ए मिनिमम वेलोसिटी, और मीन पोजीशन में हमें वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगा। समझ में आया? एक्सट्रीम पोजीशन हमने क्यों लिया है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। देखो हमें मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मिनिमम वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी का वैल्यू 0 लेकर आना है, और हमारा वेलोसिटी इक्वेशन क्या है दोस्तों, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर वेलोसिटी इक्वेशन। इफ यू हैव टू मेक दिस टर्म एज 0, सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, प्लस और माइनस है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो 0 मिल गया, इसके लिए हमने एक्सट्रीम पोजीशन लिया x के वैल्यू के लिए, तो उस जगह पे हमें वेलोसिटी क्या मिला दोस्तों, मिनिमम वेलोसिटी दैट इज 0। अब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब ये टर्म को हमें रखना है, ए स्क्वायर को हमें रखना है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए हम क्या लेंगे, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन x is what 0 friends, x is what 0, therefore velocity will be plus or minus omega root of a square minus x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 0, so it will be velocity maximum that is plus or minus omega into root of a square, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा, तो velocity maximum क्या होगा दोस्तों, ओमेगा इंटू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू a। समझ में आया? ये मिनिमम वेलोसिटी था, ये हमारा है मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार बताता हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन के लिए लेंगे, दैट इज प्लस और माइनस है, तो हमें वेलोसिटी मिनिमम आसानी से मिलेगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मीन पोजीशन में लेंगे ताकि वो 0 हो जाए और हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाए। समझ में आया? तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज टू फाइंड मिनिमम एंड एक्सेलरेशन वैल्यू, टू फाइंड minimum and maximum value of acceleration। अब हम कैलकुलेट करना है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या मिला दोस्तों, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, चैप्टर के स्टार्ट में ही कैलकुलेट किया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, दिस वाज आवर मैक्सिमम, सॉरी एक्सीलरेशन वैल्यू। नाउ फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों, 0 है कि नहीं, तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन भी क्या होगा, x 0 हो गया, मतलब मिनिमम एक्सीलरेशन विल आल्सो बी 0 फ्रेंड्स। नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में, दैट इज प्लस और माइनस a, तो उस कंडीशन में a क्या मिलेगा मेरे को, माइनस ओमेगा स्क्वायर a। समझ में आया? दैट इज a मैक्स, दिस इज a मीन। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन का वैल्यू दोस्तों क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम एक्सीलरेशन, मिनिमम एक्सीलरेशन के लिए हमें इस वैल्यू को 0 करना है, किस वैल्यू को 0 करना है, x के वैल्यू को 0 करना है, तो उस कंडीशन में ये 0 जाएगा, मतलब ये भी 0 जाएगा, तो मिनिमम एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में हम डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे, मीन पोजीशन में लेंगे, वेलोसिटी में उसको उल्टा किया था, कंफ्यूज नहीं होना है, मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो हमें एक्सीलरेशन भी 0 मिल जाएगा। अब जब हमें इसको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है वैल्यू, तो इसको 0 नहीं करना है, इसको कुछ अमाउंट में रखना है, तो उस कंडीशन में हम x का वैल्यू क्या लेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन के लेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन में हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, that is omega square into a, or plus or minus omega square into a। Understood? So this was our topic based on the calculating the minimum and maximum value of displacement, acceleration and velocity, and value of acceleration, velocity and displacement। तो एक बार फिर से रिवीजन देख लेते जहाँ से स्टार्ट किया था हमने। तो हमने आज यहाँ से स्टार्ट किया था ऑसिलेशन। तो पहले हमने पढ़ा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हमने एक्सप्लेन किया। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स दोस्तों क्या होता है, ऑपोजिट फोर्स। तो हमें रिस्टोरिंग फोर्स दोस्तों क्या मिला, माइनस के इंटू एक्स। उससे हमने कैलकुलेट क्या किया, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या किया,
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों कितना मिला, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी इज प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। फिर हमने कैलकुलेट किया एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर दी एक्सेलरेशन। तो हमें क्या मिला, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट में। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, वेलोसिटी प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। दिस वॉज आवर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम के लिए कितना मिलता है 0, मैक्सिमम के लिए कितना मिलता है वो भी हमने कैलकुलेट किया। इस तरह आज इस वीडियो को स्टॉप करते, आप अच्छे से नोट्स मेंटेन कीजिए, अच्छे से इसका तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।